کہ انہوں نے امت کے اس بڑے ایشو پر اس نازک دور میں اتحادی امت کا یہ خوبصورت مجلس سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیر سارا اجر دے۔ میں چند باتیں اپنی جذبات کے اظہار کے لیے بھی کروں گا، لیکن مجلس بہت اہم ہے۔ کچھ غور و فکر کی اور کچھ ہوش کی باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں ایک تجویز جو آخری سیشن میں قائدین کرام آئیں گے تو ان کی خدمت میں اپنی ایک عاجزانہ تجویز بھی رکھوں گا۔ 18 ماہ ہو گئے ہیں، 18 ماہ 540 دن ایک جینوسائیڈ جاری ہے، اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جینوسائیڈ بھی ہے، یہ ایکوسائیڈ بھی ہے، ماحول کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ 30 لاکھ درخت کاٹے ہیں اسرائیل نے، جس میں اکثریت زیتون کے ہیں۔ زیتون میری شناخت، میری پہچان، میری دل کا ٹکڑا، میری ثقافت، میری تہذیب، تو یہ جینوسائیڈ بھی ہے، یہ ایکوسائیڈ بھی ہے، یہ بچوں کا ہولوکاسٹ ہے۔ میں کیا بتاؤں، وہ درد بیان نہیں کر سکتا بندہ۔ ابھی چند دن پہلے جنیوا میں اقوام متحدہ نے رپورٹ پیش کی، جنیوا میں، کہ 4000 ایمبریو کو اسرائیل نے ڈسٹروائے کیا ہے۔ وہ 4000 بچے جو ماؤں کے پیٹ میں تھے، ان ماؤں کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیا گیا، ان ماؤں کو خوفزدہ کیا گیا، ان کے بچوں کو ان کے رحم کے اندر قتل کر دیا گیا۔ 4000 ایمبریو ڈسٹروائے۔ تو یہ ظلم کی ایک داستان ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اہلیان غزہ کو، حماس کو۔ آپ کو پتہ ہے عرب اسرائیل کی ایک جنگ ہوئی تھی، اس کو کہتے ہیں 6 days وار۔ عرب کے لوگ اس کو 6 hours وار کہتے ہیں، 6 گھنٹے کی جنگ تھی۔ متحدہ عرب فوج کو اسرائیل نے 6 گھنٹے میں شکست دی ہے، لیکن حماس 540 دنوں سے ڈٹا ہے، ڈٹا۔ شاباش اہلیان غزہ، مرحبا حماس، اور حماس جیتے گا انشاءاللہ۔ نعرے نہ لگا، وقت کم ہے۔ یہ ایک عجوبہ ہے۔ امریکہ، یورپ، اسرائیل، دنیا کی سب سے بڑی جنگی مشین، the largest intelligence gathering machine, sophisticated weapons، 540 دن بے سر و سامانی میں جہانی عالمی طاقت کا مقابلہ، یہ میریکل ہے، یہ ایک عجوبہ ہے، جدید دور کا ایک عجوبہ ہے۔ تو اس پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یاد رکھیں فتح اور جیت غزہ کی ہے، حماس کی ہے، اسرائیل اور اس کے سرپرست شکست کھا چکے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ادراک ہے کہ دیکھیں مسجد اقصی کو ماضی میں 2 خطرات آئے تھے۔ ایک خطرہ تھا صلیبیوں کا، صلیبیوں نے کھل کر اعلان کیا تھا کہ ہم انہدام نہیں چاہتے، قبضہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے 90 سال تک قبضہ کیا تھا۔ دوسرا خطرہ تھا تاتاریوں کا، تاتاری بھی قبضہ چاہتے تھے، انہوں نے انہدام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ یہ 1400 سال میں، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، 1400 سال میں واحد چیلنج ہے جس نے کھل کر کہا ہے کہ ہدف مسجد اقصی کا انہدام ہے۔ ڈکلیئر آبجیکٹیو مسجد اقصی کا انہدام، اللہ نہ کرے ہو گیا تو حرمین شریفین خطرے میں ہیں۔ یہ جنگ ہے مسجد اقصی کا بھی، حرمین شریفین کی دفاع کا بھی۔ اس لیے ہم 57 اسلامی ممالک سے پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ 57 اسلامی ممالک ہیں یا 57 امریکی اڈے ہیں؟ غزہ کے لوگوں کو OIC اور 57 اسلامی ممالک کی قراردادیں، اجلاسیں، مشترکہ اعلامیے، مذمت کے الفاظ نہیں چاہیے، عسکری مداخلت چاہیے۔ غزہ کے اندر عسکری مداخلت
काम नहीं कर सकते तो करारदादों, मजम्मत से, इजलासों से, मुश्तरका एलानियों से कौम को और उम्मत को धोखा नहीं दे सकते। ये नाकाबिल कबूल है। जिहाद फर्ज हो चुका है। अरब व अजम के उलमा ने ऐलान कर दिया है कि जिहाद फर्ज हो चुका है। इस फर्ज जिहाद के ऊपर मुस्लिम हुक्मरान और जर्नल लब्बैक नहीं कहेंगे तो अल्लाह के यहां भी मुजरिम है, उम्मत के यहां भी मुजरिम है। कोई उज़्र उनके पास नहीं होगा। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि आगे बढ़ो, और ये जो बारी बारी सबकी बारी, ये ना कहो कि तुम बच जाओगे। ट्रंप ने खुलकर ऐलान किया है ओआईसी के 2 मेंबर ममालिक अब उनके हदफ पर हैं, उनको मलियामेट करेंगे। बारी बारी सबकी बारी, इंतजार न करो, आगे बढ़ो। मस्जिद अक्सा को बचाओ, हरमैन को बचाओ। रसूलुल्लाह की उम्मत मुहासिरे में है। रसूलुल्लाह की उम्मत के खिलाफ आलिमी कुफर के इस मुहासिरे को तोड़ो। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से क्या अपनी बात समेट रहा हूं। आप अफगानिस्तान से शरीफुल्लाह को पकड़कर ट्रंप के हवाले कर सकते हैं और कहते हैं गज्जा के लिए कुछ नहीं कर सकते। गज्जा के लिए क्यों नहीं कर सकते? जब आप अफगानिस्तान के शहरी को अफगानिस्तान से पकड़कर ट्रंप के हवाले कर लेते हैं और वो अपनी पहली पार्लिमानी तकरीर में आपकी तारीफ करता है, तो गज्जा के लिए कैसे कुछ नहीं कर सकते? कैसे मैं मानूं? और आप कहते हैं ये काम करते हैं। 11 पाकिस्तानी इस दौरान गए हैं इजराइल। ये 11 पाकिस्तानी कौन है? इनके चेहरे कौम को दिखाओ, इनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट कौम के सामने लाओ। आप अफगानिस्तान से बंदे को पकड़ सकते हैं और 11 बंदों के नाम, चेहरे कौम के सामने अभी तक नहीं लाए। या आप अगर नहीं लाएंगे इसका मतलब है ये आपके सपोर्ट से गए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, उन्होंने तौहीन की है पाकिस्तान के 11 लोगों ने। इन्होंने हमारी जख्मों पर नमकपाशी की है, गद्दारी की है। इनकी पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और शहरियत कैंसिल कर दिए जाएं। और याद रखें, इस मजलिस के तवस्सुत से जो इस्राइल की हिमायत में आगे आएगा न उन्हें इबरत बनाएंगे इंशाअल्लाह। उनको हमें तस्लीम नहीं है। अभी वजीर खारिजा ने टेलीफोन किया था पाकिस्तान के वजीर खारिजा को। कल 3 बातें डिस्कस हुई है। नंबर 1, पाकिस्तान के मिनरल्स, मौजू नहीं है वरना मैं इस पर बात कर लेता। नंबर 2, अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा। दूसरी बात यह डिस्कस हुई है। और तीसरी बात जो डिस्कस हुई है वो पाकिस्तान के टैरिफ का इशू। आप गज्जा को क्यों भूल गए हैं? आपने गज्जा की बात क्यों नहीं की अमरीकी वजीर खारिजा से? आज के अखबारात में खबर है कि पाकिस्तानी वफाकी वज़रा का वफद जा रहा है टैरिफ के इशू पर अमरीकी हुक्मरानों से। चंद डॉलरों की बात करते हो और रसूलुल्लाह की बेटियां लुट रही है, उसकी बात नहीं करते। गज्जा के लिए वफद भेजो, टैरिफ के लिए नहीं। गज्जा के लिए वफद भेजो, तिजारत के लिए नहीं। गज्जा के लिए वफद भेजो, सौदागरी के लिए नहीं। मंजूर है आपको? ऐसा कोई वफद जो गज्जा की बात ना करे हमें काबिल कबूल नहीं होगा। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। बिल्कुल आखिरी बात, मैं मुतालिबात करता हूं एक जुमले में पूरे आलम इस्लाम से, फौरी, इमीडिएट एंड सस्टेनेबल सीज फायर, ताकि गज्जा को बचाया जा सके। आलमी बिरादरी को मुतहर्रक करो, ओआईसी को मुतहर्रक करो। इमीडिएट एंड सस्टेनेबल सीज फायर, यह मौत का रकस बंद कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, गज्जा के तहफ्फुज़ के लिए ओआईसी के चार्टर में लिखा है ओआईसी के मुश्तरका फौज भेजी जाए। यह चार्टर में लिखा है, यह चार्टर में है। आर्टिकल 2, आर्टिकल 5 ऑफ द चार्टर ऑफ द ओआईसी पढ़ लें। फौरी तौर पर ओआईसी के 57 ममालिक की मुश्तरका फौज गज्जा की
तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा जाए। नंबर 2 और नंबर 3 ये ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी रास्तों से इंसानी इमदाद। बच्चे मर रहे हैं, ख़वातीन मर रहे हैं, ज़ख्मियों के लिए इलाज की सूरत नहीं है, तो बहरी नाकाबंदी तोड़ दो, फ़िज़ाई रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से गज़ा को तरसील करो। और पाकिस्तान के अवाम से आखिरी मुतालिबा ये करके गुफ्तगू समेट लेता हूं। पाकिस्तान के अवाम से बाइकाट करो, ये हमारा हथियार है। डोनेशन दो, ये हमारी ईमान का तकाजा है। सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ, ये सोशल मीडिया का जिहाद है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम चीज ये है कि हमास ने कहा है हिसारतुस सफारा, निकलो, लाखों की तादाद में निकलो, अमरीकी सफारत खाने के सामने बैठ जाओ। मैं शाबाश देता हूं सरदार मदर साहब को, बिलाल रब्बानी साहब को। कल, और आपको दावत भी देता हूं, कल जुम्मे के बाद मुस्लिम तलबा महाज ने आप पारा से अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान किया है। सब उसमें आ जाओ। मैं अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ आऊंगा, मैं अपने खवातीन, अपने बच्चों के साथ आऊंगा। आ जाएं सब उसके अंदर हिसारतुस सफारा। देखें, माइक्रोसॉफ्ट में मराकशी बच्ची इब्ताल अबू साद ने 50 साल जश्न को मलियामेट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट के। आपको पता है उनके साथ एक और लड़की कौन थी? उनके साथ दूसरी लड़की थी वानिया अग्रवाल, इंडियन हिंदू थी। कल जब हशर के रोज वो हिंदू लड़की खड़ी होगी जिसने गज्जा के लिए माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी को लात मारा और 50 साल जश्न में बिल गेट्स के सामने उसको जलील किया, कल वो भी खड़ी होगी और कल मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक भी खड़ा होगा। न मैंने नौकरी छोड़ी, न मैंने कारोबार का नुकसान किया, न मैं जेल गया, न मैंने लाठियां खाई, न मैंने भूख और प्यास बर्दाश्त की। तो आप लोग बताएं मुझे, हम कैसे रसूलुल्लाह को ये यकीन दिलाएंगे कि हम गज्जा के साथ मुखलिस थे। लिहाजा मैं ये तजवीज आखिरी सेशन के अपने बड़े कायदीन के लिए, मरकजी कायदीन के लिए पेश करता हूं कि आप हमारे आंखों के तारे हैं, हमारे सरों के ताज हैं। आ जाएं, हम अपने लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट पुरअमन पीसफुल, कोई तोड़ फोड़ नहीं, अपने कानूनी हक एहतजाज को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज के तौर पर लाखों की तादाद में अपने बच्चों के साथ, अपने खवातीन के साथ, अपने बूढ़ों के साथ, अपने उलमा की क़ियादत में बैठे दुनिया को पैगाम दे कि जब तक अमरीकी सरपरस्ती में ये अमेरिकन जेनोसाइड है, ये यूरोपियन जेनोसाइड है, ये इजरायली जेनोसाइड है, जब तक अमरीकी सरपरस्ती में ये सब कुछ जारी रहेगा, हम अमरीकी सफारत खाने के सामने बैठे रहेंगे। ये मंजूर है आपको? इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। वाह।